So Jain class 9th. So in the chapter coordinate geometry, we were discussing about the Cartesian planes, coordinate axes, and then we have discussed about coordinates, how to locate the coordinates on plane, and what are the quadrants. I told you that the coordinate axis is of two types, that is vertical axis and horizontal axis. Vertical axis represented by y dash and horizontal axis represented by x dash, right? And when vertical and horizontal axis intersect each other at a point, that point is known as origin, and the coordinate of the origin is 0, 0. And one thing more you have to remember, that the coordinate axes when intersect each other at origin, the plane divided into 4 parts, and that 4 parts are known as 4 quadrant. Then I explained you that the 4 quadrant having the coordinates such as in the first quadrant both x coordinate and y coordinates are positive, so plus plus. In second quadrant x negative, y positive, so minus plus. In third quadrant x negative, y negative, so minus minus. In fourth quadrant x positive, y negative, so plus minus. So these all are the 4 quadrants coordinates according to which we define the point in 4 quadrant. Now then I explained you one thing more, which I explained you that what is ordinate and abscissa, right? So distance from y-axis is the coordinate of x, that is called abscissa, and distance from x-axis is called ordinate, and it is the movement on y-axis, right? So in this way, I have explained so many topics which you have to revise time to time, otherwise you will forget. And now moving to the next topic, I am going to recall coordinate, right? Coordinate को थोड़ा सा remember करते हैं कि क्या होता है. What is coordinate? See, coordinate is a ordered pair of x and y position of a point, right? तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? We generally represent the coordinate as x, y. Correct? X, y. Is it possible that? No. First, we will discuss what is ordinate pair. Ordered pair. Sorry. We will discuss what is ordered pair. Ordered pair. What do you mean by ordered pair? See what is ordered pair. A pair of number A and B listed in specific order with A at the first and B at the second is called ordered pair, right? So ordered pair is a pair of number A and B. This is a pair of numbers A and B in such a way that A and B in such that A at the first and B at the second in the list, right, is called. So pair of number A and B listed in such a way that A at the first and B at the second is called ordered pair. देखिए हमने कल कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें ए कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं ब्रैकेट के अंदर. दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, है ना. तो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. देखिए ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है कि ए और बी अगर 2 डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो इस तरीके से अरेंज हैं सो दैट ए विल कम एट फर्स्ट, बी विल कम एट सेकंड, राइट. सो दिस सीक्वेंस इज
इंपॉर्टेंट है ना, ये सीक्वेंस मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू कैन नॉट राइट a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। a कॉमा b और b कॉमा a एक ही चीज नहीं होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? As we write p 3 comma 4, this will not be same as p q 4 comma 3. इन दोनों में डिफरेंस है ना, बिकॉज दिस इज ऑर्डर्ड पेयर 3 comma 4. 3 is first, is at first, 4 is at second. You cannot write 4 at first, 3 at second. लिखने को तो लिख सकते हैं, this is another thing, but this is another thing, है ना? ये दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं। यू कैन नॉट से दैट p 3,4 is same as q 4,3, right? So note down the definition of ordered pair and what is ordered pair. This and ordered pair means sequence matter, है ना? Sequence is very important, right? अगर मैं लिख रहा हूँ 3,4 तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर है जहां पे 3 का पोजीशन फर्स्ट पे है और 4 का पोजीशन सेकंड पे है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, मीन्स 4,3 कर देते हैं, तो दैट पॉइंट विल बी डिफरेंट। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करने लगेंगे, करेक्ट? तो दिस इज पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट, नॉट सेम, करेक्ट? So in this way, this is ordered pair. You have to remember this, right? Okay. One thing more. Note down all these things. I'm going to tell you next topic. Some important notes. Note down in your copy. Important notes. I'm going to tell you about some important notes which is based on coordinate geometry. First point is coordinate of a point lying on x-axis is. What is the? कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, coordinate of a point lying on coordinate of a point lying on x-axis. x-axis पे जो पॉइंट लाई करती है, अब देखिए x-axis पे अगर कोई पॉइंट होगी, ठीक है, तो वो x पे तो कुछ ना कुछ ट्रेवल कर ली, बट y पे तो कोई ट्रेवल नहीं हुआ उसका। इट मीन्स y कोऑर्डिनेट विल बिकम 0 एंड x कोऑर्डिनेट समथिंग विल हैपन, है ना? x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो कोऑर्डिनेट विल बी a, 0 बिकॉज y पे वो कुछ नहीं ट्रेवल किया, सो y कोऑर्डिनेट 0 और x पे वो a यूनिट का मूवमेंट किया, सो इट विल बी a, 0. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. कम टू द सेकेंड पॉइंट. Second point is coordinate of a point lying on y-axis. इसी की बात करते हैं. Coordinate of a point lying on y-axis. अगर कोई पॉइंट y-axis पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखिए वर्टिकल लाइन पे अगर कोई पॉइंट आ जाती है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो x पे मूवमेंट किया ही नहीं, सो x कोऑर्डिनेट विल बिकम 0 while y कोऑर्डिनेट विल बी समथिंग सपोज b, राइट? सो द कोऑर्डिनेट विल बी 0, b. द कोऑर्डिनेट विल बी 0, b. सो if a point lying on x-axis, so y coordinate will become 0, so it will be a, 0. And if a point lying on y-axis, so x coordinate will become 0, so the point will be 0, b. These 2 points you will have to remember, so that in examination sometime 1 mark question it may ask, है ना? कभी-कभी 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, so this you have to remember, right? But with the next point, that is equation of x-axis. What is the equation of x-axis? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. अब सोचिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. आप लोग देखिए, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, है ना? तो x एक्सिस पे आप कहीं भी ट्रेवल कर लीजिए, y की वैल्यू 0 होगी. इसलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0.
This is the equation of x-axis. Y equal to 0. Equation of y-axis. Next point is equation of y-axis. What is the equation of y-axis? Y-axis is the vertical line in which x coordinates are 0. X के coordinates क्या होंगे? 0 होंगे. So x equal to 0. This is the equation of y-axis. Correct? So these all are the 4 points which are very important to you. देखिए एक बार हम इसको ग्राफिकली समझते हैं. X axis, y axis. First point is coordinate of a point lying on x axis. X axis पे कोई भी point आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है. This is point on x axis. इस पे x पे तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ मेजर होगा ही a, बट क्या y पे मूवमेंट कुछ हो रहा है? नहीं, ये वहीं पर है ना. इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x पे वो कितना चला? a, जबकि y पे 0. सो कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस विल बी a, 0. उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रही है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो y एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा ना उसका, सपोज b होगा, है ना. लेकिन x पे तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट विल बी b. तो 0, b विद द पॉइंट और द पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस. उसके अलावा इक्वेशन फॉर x एक्सिस. दिस इज x एक्सिस. x एक्सिस पे क्या होता है? x एक्सिस पे y की सारी वैल्यू 0 होती हैं. आप कहीं भी पहुंच जाइए, यहां पर रहिए या फिर यहां पर आ जाइए या फिर यहां पर आ जाइए, द y वैल्यू विल बी 0. इसलिए x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y इक्वल टू 0. उसी तरीके से y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इक्वेशन फॉर y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू 0. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये आपको याद रखनी पड़ेगी ये सारे चारों पॉइंट, बिकॉज ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं. दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. 1 मार्क्स दैट इज इन शॉर्ट आंसर्स और इन मल्टीपल चॉइस इट मे आस्क, राइट. तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग कैसे लोकेट करते हैं. इफ वी हैव गिवन पॉइंट्स, राइट, सो हाउ वी लोकेट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, करेक्ट. तो इसी से रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर रहें, राइट. I'm going to solve few questions of exercise, that is exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, राइट. सी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. In which quadrant or on which axis do each point lie? Verify your answer by locating them on Cartesian plane, है ना. तो देखिए यहां पर क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है. In which quadrant or on which axis do each point lie? पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं? -2, 4. Second point is 3, -1. Next point -1, 0. 1, 2. -3, -5. Correct? So these all are the point, 5 points, right? You have to guess. आपको ये बताना होगा by saying the point. You have to tell that on which quadrant this will lie. तो थोड़ा सा पहले क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट पर आते हैं. तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था, क्योंकि ग्राफिकली भी इसको लोकेट करना ही है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. आप लोग ये जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा, बिकॉज नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ यू विल नॉट मार्क द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर, राइट. सी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिएगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द coordinates are +,
दोनों क्या है, प्लस एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, सो प्लस कॉमा प्लस। इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। इन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। इन फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। करेक्ट? So plus plus minus plus minus minus plus minus, right? These all are the four quadrant and the points lying in the four quadrant will have these sign conventions, right? अब हम डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप देख बता सकते हैं, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान हो गया ना। अगर हमको पहले से पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हैं उनके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, तो पहला क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब चेक करिए, पहले पॉइंट आ दिए -2 + 4, -2 + 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए -2 + 4 माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। करेक्ट? 3 - 1, पहला प्लस है दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट -1, -0, -1 प्लस क्या ये होगा, -1, 0, राइट? इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको स्पेस चाहिए होगा। तो माइनस प्लस कॉमा 0, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, ये प्लस प्लस भी दिख रहा है तो प्लस, इसमें इट मीन्स दैट दिस विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? बट नो, दिस विल नॉट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाई? स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड दैट द फर्स्ट वन इज नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव, सो दे विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बट नो, दिस इज नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट स्पेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी स्पेस है, फोर्थ भी स्पेस है, थर्ड भी स्पेस है, बट देयर आर सम पॉइंट्स विच मे लाई ऑन द एक्सेसेस, है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन लाइंस, इन एक्सेसेस पर भी आ सकती हैं। तो -1, 0 इज वन ऑफ द पॉइंट विच विल लाई ऑन एक्सेसेस। अभी किस एक्सेस पर आएगा, देखिए -1, 0, तो देखिए -1 मतलब एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड पर आ जाइए, और 0 y 0 है, इट मीन ये कहीं यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर समथिंग आएगा, तो इट विल बी लाई इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, lie on negative x axis, ठीक है। दिस विल नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 1, 2, बोथ आर प्लस, है ना, +1 + 2, प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट वन -3, -5, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। करेक्ट? So in this way we can represent the coordinates in different quadrant, अलग अलग क्वाड्रेंट में हम लोग कोऑर्डिनेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बात ये भी खत्म नहीं होती है, why? Because we have just located we have not located the points on the axes, है ना। हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने पॉइंट्स को लोकेट नहीं किया। जब क्वेश्चन ये भी बोल रहा था कि पहले आप डायरेक्टली बता दीजिए कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो वी नो दैट द साइन कन्वेंशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन इजीली जज दैट द गिवन पॉइंट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। बट नाउ यू हैव टू लोकेट ऑल दिस पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। चलिए लोकेट भी करते हैं इसको। अब तो ये सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, बिकॉज दीज ऑल आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखिए कि कितने पॉइंट्स का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। वन थिंग मोर, दिस विल बी ऑन ग्राफ पेपर, ये आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, यहाँ पे नहीं प्लॉट कर दोगे, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी पे स्केल से ड्रॉ करके मार्क कर दिया, नो, दिस विल नॉट बी हैपन, राइट। यू हैव टू ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर पे करके कॉपी पे पेस्ट करना है, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड
how to locate the point, because if you will not mark the point on graph paper, then you'll face difficulty to draw lines. We will study how to draw lines, right? How to draw different lines. We will intersect at a point to draw triangle, rectangle, to find out area, perimeter. ये सब आगे क्वेश्चंस आएंगे क्लास 10 में भी, ये चैप्टर है and this is very important chapter, right? For examination purpose, for board purpose, right? So when you not locate the point on graph paper, you will not be able to solve any question. So try to do, no, not try, you must have to do, right? So देखिए x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना पॉजिटिव जाना है, 3 तक मैक्सिमम पॉजिटिव जाना है, तो 0 1 2 3, चलिए इसका लेते हैं 4, 1 2 3 4. तो मैं तो यहाँ पे ऐसे प्लेन पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बट यू हैव टू मार्क ऑन ग्राफ. आपको ग्राफ पे करना है, इसलिए ग्राफ पेपर जो होगा वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफ पेपर जो भी होगा उस पे आप लोग लोकेट करिएगा, ठीक है. सो फॉर रिप्रेजेंटिंग द गिवन थिंग्स ऑन ग्राफ पेपर, वन बॉक्स विल बी कंसिडर एज 1 यूनिट, सेकेंड बॉक्स 2, थर्ड बॉक्स 3, फोर्थ बॉक्स 4, राइट. आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. देखिए ग्राफ पेपर पे करना है तो, है ना. नेगेटिव साइड आते हैं -1 -2 -3, -1 -2 -3, चूंकि नेगेटिव है. देखिए मैक्सिमम 5 तक जाना है, सॉरी. सो x है ना 3 तक, सही है, -3 तक, ठीक है. फिर नाउ सी y एक्सिस देखते हैं. y पॉजिटिव मैक्सिमम कितना है, 4 तक है, तो 4 ऊपर कर लीजिए. 1 2 3 4, 4 3 2 1. So first box will be 1, second box 2, third box 3, fourth box 4, right? Now see negative में -5 तक मैक्सिमम चले जाइए. -1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1, correct? So in this way we have located the mark the points on the graph, right? अब देखिए पॉइंट्स को लोकेट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज -2 4, -2 पे पहुंच गए और 4 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है. तो ये सारा मैं इरेज कर देता हूं. वैसे तो ये इंपॉर्टेंट था, बट यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज थिंग्स, सो नो नीड टू राइट ऑल. सी -3 and 4, -2 and 4, राइट. पहला पॉइंट कहाँ है, -2, तो x पे -2 और y पे 4. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, स्केल से प्रॉपर करिएगा, एंड इसको भी हॉरिजॉन्टली आगे ले जाएंगे, राइट. तो दिस इज द पॉइंट वेयर -2, 4 विल लाई. ऑन ग्राफ पेपर यू हैव टू ड्रॉ dotted line to intersect here, and this point is known as -2, 4. Second point is 3, 1. पॉजिटिव पे 3 और नेगेटिव पे 1. इट मीन्स इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से, इसको नीचे ले आते हैं, यहां पे कट किया. दिस इज 3, -1, 3, -1, राइट. नेक्स्ट पॉइंट -1 और y से 0. दिस पॉइंट विल लाई हियर इटसेल्फ, -1 0 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है. तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, -1, 0. देखिए x एक्सिस पर आ गया ना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट 1, 2, 1 पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो 1, 2, 1, 2, करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट -3, -5, -3 नेगेटिव, -5 नीचे आ जाइए, -5. सो -3 -5. This point, -3, -5. So we have located all 4 points on the coordinate axes. अब देखिए कोरिलेट करते हैं. -2, -4 कहां पर है, यहां पर है. ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट. 3, 1 कहां पर है, आपको पॉइंट दिख रहा होगा. 3, -1 देखिए कहां पर है, 3, -1 3, -1 है ना. तो किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. -1, 0 यहां पर है, नेगेटिव x एक्सिस पर है, ठीक है. नेक्स्ट 1, 2 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. -3, -5
is in -3, -5 in third quadrant. तो इस तरीके से हम ग्राफ की हेल्प से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि all these given points are lying on the graph and in which quadrant, on which axis. Correct? So in this way you can represent the points on graph paper. तो आप लोग ग्राफ पेपर पे ये लोकेट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, है ना, स्केल के हेल्प से ड्रॉ करिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो. Now the second question, that is exercise 3.3 second question. exercise 3.3 का second question आप लोग खुद से करोगे, ठीक है. So exercise 3.3 second question will be done by you in your class of in your homework copy, right? तो homework copy में exercise 3.3 का second question आप लोग करोगे, ठीक है. So in this way we have covered this chapter. इस chapter को हम लोगों ने cover कर लिया है और कुछ इसमें खास है नहीं. And one thing more, I just want to tell you that, see, this is important because the given thing will have to draw on the graph paper. An equation is given for the line. Equation of the line. See, I'm going to show you. See, now see class, I'm going to tell you something extra which is not given in NCERT, but you will study later, because in next chapter linear equation टू वेरिएबल, जहां पर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, है ना, लाइंस को ड्रॉ करते हैं, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी. तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड विद द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड ड्रॉइंग द लाइंस एंड ऑल, राइट. तो सब कनेक्टेड ही है. थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. सी, 3x - 5 + 2, 3x - 5 + 2 = 0. करेक्ट. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है 3x - 5 + 2 = 0. दिस यू हैव टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर, है ना. इसको आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है. तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए, y = mx + c is the equation of line. y = mx + c is the equation of line. This can be write as -5 will come in right hand side, will become y = 3x + 2. y = 3x + 2. तो यहाँ पे क्या हो गया, y = mx + c. फॉर्मूला क्या ना, m3c2y, राइट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ line. This is the equation of line, right? It means that when we draw this, right, on a plane, हम जब plane पे या फिर ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे, it will look like a line. It will look like a line segment. एक line segment की तरह हमें ये दिखाई देगा, right? चलिए देखते हैं क्या ऐसा है. See, there is hit and trial method. You have to put the value of x to find the value of y. x की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे. देखिए, जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू आएगी 2. ये अपने ऊपर है कि हम x की वैल्यू क्या रखें, है ना, और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं. x की वैल्यू 0 रखा, ये 0 हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई. x की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 2, 5. x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5. एक और वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको सॉल्व करना, मतलब जो मैं टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे निकाल रहे हैं शायद आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं. x की वैल्यू -1 रखिए, तो जैसे ही हम लोग x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, 3 × 3 -3 + 2. -3 + 2 will come -1. तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी. तो x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू -1 आ रही है, राइट. तो इस तरीके से हम ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. टेबल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे होंगे. कौन कौन से, 0, 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 1, 5 सेकेंड कोऑर्डिनेट, -1, -1 द थर्ड कोऑर्डिनेट. इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. देखिए कैसे प्लॉट करेंगे. ड्रॉ वर्टिकल लाइन. आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा, मुझे दोबारा बोलना ना पड़े.
all the graphical work should be on graph paper, right? Because नाम ही है graph should be on graph paper, not ruler line, right? or plain paper, ये नहीं होना चाहिए. y की वैल्यू 5 मैक्सिमम रखनी है, तो 1 2 3 4 5. x की वैल्यू 1 2 तक ले लीजिए, -1 भी है तो एक निगेटिव भी ले लेते हैं थोड़ा. अब देखिए पॉइंट लोकेट करिए. 0,2 फर्स्ट पॉइंट इज दिस 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट 1,5, 1 और 5 इट विल लाई हियर, 1 यहां पे लाई करेगा, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट -1 नेगेटिव x, -1 नीचे जाएंगे, -1 हियर, यहां पर आएगा, है ना. तो इन तीनों पॉइंट को जैसे ही हम लोग ज्वाइन कर देंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. आप लोग स्केल से ज्वाइन करिएगा, आप लोग का लाइन में स्ट्रेट जाएगा बिकॉज आई एम प्लॉटिंग ऑन द प्लेन, दैट्स व्हाई देयर इज सम zigzag line formed, but when you will draw join all 3 points you get a straight line. एक straight line मिलेगी जो कि 2D से भी बेंडिंग उसमें नहीं होगी. इम्पॉसिबल है, बेंडिंग होना इम्पॉसिबल है, राइट. तो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन. मैंने क्या बात है स्टार्टिंग में कि y इक्वल टू mx प्लस c. वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट दिस इक्वेशन, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये इक्वेशन जो है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में. y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद ये इक्वेशन जो होता है किसका इक्वेशन होता है, दोनों इक्वेशन किसी इक्वेशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गया, राइट. तो दिस इज अगेन वन एग्जांपल व्हिच मे आस्क इन एग्जामिनेशन. सो दिस यू हैव टू सॉल्व इन योर कॉपी, राइट. ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिएगा और इसको फिर पेस्ट कर दीजिएगा, करेक्ट. If there is some more examples, we will discuss later. इसके अलावा भी कुछ अगर एग्जाम्पल्स होते हैं हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. One thing more class, which you have to remember that the summary is given in the last of exercise 3.3 of page number 65 in NCERT, which you have to read, है ना. उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. I don't think there is any point left, राइट. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है. तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर द समरी ऑफ द चैप्टर, राइट. सब कुछ रिवाइज हो गया है. अगर आप चाहे तो ऑल 4 लेक्चर्स रिवाइंड करके देखिए, यू विल गेट द ऑल थिंग्स टू बी स्टडीड वेल, है ना. सारे कंटेंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है. And try to solve R.S. Agrawal, R.D. Sharma, right, NCERT, but don't distract from the topic. जितने टॉपिक पढ़ाया है मैंने उसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ओके. एंड अभी मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कि रेक्टेंगल बन गया था. उस रेक्टेंगल के बेसिक रेक्टेंगल बन गया था जिसको कि हमने फर्दर एक्सप्लेन किया, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन और भी हम डिस्कस करेंगे आगे, रिवीजन में कर लेंगे या फिर कभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे, राइट. ओके, थैंक यू सो मच. सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस so that you will get confidence on the topic. Okay, thank you so much again.